I have tears in my eyes. I wanted to tell you, it was mind blowing, and I Thank could you. sense your journey. I could sense, against all the odds, the way you have gone, Hmm. extreme climate conditions, cyclones Hmm. coming, whirlwinds coming, Hmm. and food deprived, sleep deprived, and Hmm. you have entire body ache, and you have wounds all over your body, and then Right. also you did it, and you came back, and there Yeah. were moments when you experience, this life is not gonna be more, you're not gonna survive more, and then but still coming out live out of it is like I could sense that Yeah. very much when I was seeing the video, and Absolutely. especially And in a very weird way, I'm missing all of those things. Like, जब भी थके होते हो, खाना नहीं खा पा रहे हो, पानी नहीं पी पा रहे हो, सो भी नहीं पा रहे हो, बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना. In a way, I'm missing it because after Everest, I haven't been to any other expedition. अभी I was supposed to go in March, but निकलने के I think 3-4 दिन पहले मोदी जी आए रात को 8 बजे and rest is history. So अभी एक yeah. साल के लिए और डिले हो गया. So I'm just trying to keep my calm because जब से मैं एवरेस्ट से आया, the very next day, I started my training for my next expedition, which was exactly 1 year later. So going back all the way 365 days, it's not an easy task. When you've waited, you've built it all up, the energy. Main is the energy that you build to जब आप वहां पे जाओ तो वहां पे उसको रिलीज करना है. तो जब भी वो रिलीज करने नहीं मिलता है तो अंदर ही अंदर वो फिर वो एनर्जी इट जस्ट मेक्स यू गो क्रेजी. उसको मैनेज करना बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है. जो I know क्योंकि बहुत सिस्टम में एनर्जी हो जाती है. You want to throw it out, somewhere, I guess, Yeah. because the system is so energized. I could sense that. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल because almost 300 days we train to go for that 60-day long expedition. तो मतलब 300 डेज का बिल्डअप 60 डेज में हमें रिलीज करना होता है. सो अभी रिलीज हुआ नहीं है. So just trying to manage that energy within and trying to just okay, one day at a time. So right now you're doing like regular gymming and whatever, the fitness freak, whatever, yoga or with the Yes, pranayama. जो मेरा रूटीन है इन अ वे पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ उसको बिकॉज ऑफ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन. बिकॉज द मेन पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग वॉज हाइकिंग. सो आई कैन नॉट गो हाइकिंग एनी मोर, बट रनिंग, साइकिलिंग, पार्क में जाके आई डू सम कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट एंड अ लिटिल बिट ऑफ ऊपर योगा. ईशा से ही सीखा मैंने. सो अ लिटिल बिट ऑफ दैट. सो हाँ, मतलब जो फिटनेस गेन की थी उसको मेंटेन कर पा रहा हूँ अभी. दैट इज हैपनिंग. That's amazing. आपने बात जैसे शायदरी में आपने 2 years लगाए ना before the Mount Everest climbing. You trained yourself, the sadhana which you did, which was so intense in itself, getting up at 3 in the morning and then doing pranayama, meditations, and yoga, to make your mental system so strong, to make your physical system capable of traveling the Mount Everest. Tell us something about those 2 years. How was it? How was staying in the Shayadri, all alone, Shayadri Mountains, right? And you were all alone there, building your own setup, managing your own stuff there. How difficult and how challenging it was? How interesting it was? Well, I wouldn't say ठीक है. हाँ, वो 2 साल मैंने एवरेस्ट के ऊपर स्पेसिफिक ट्रेनिंग की, लेकिन मैं गए 10 साल से क्लाइंबिंग कर रहा हूँ. सिंस 2010 आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग. So each and every trek I did, each and every expedition I went on, no matter how big or small, I consider all of them to be a part of my training because it all adds up. But हाँ, ये 2 साल जो ट्रेनिंग की एवरेस्ट स्पेसिफिक, I because the best training for mountaineering is to actually be in the mountains. पहाड़ों में रहते हो, पहाड़ों का खाना, पहाड़ों का हवा, पहाड़ों का पानी, ऊपर नीचे करते हो आप, तो उसके जैसा जो एक नेचुरल माउंटेन स्पेसिफिक फिजिक जो क्रिएट होती है वो शहर में रह के थोड़ा मुश्किल है. इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जरूर मैं कहूँगा मुश्किल है. तो कीपिंग दिस इन माइंड आई शिफ्टेड माई बेस, माई हाउस, नॉट माई हाउस, जस्ट मी. एंड आई लाइक मेरे पास उतना ही सामान है जो एक बैकपैक में फिट हो जाए. ये जो पीछे कबर्ड देख रहे हो यहाँ पे, उसमें हार्डली 3-4 टी शर्ट है, 3-4 शॉर्ट्स है, एक पैंट है,
जो भी शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक यू नो चेन वाला है, तो कहीं भी जाना है, बड़े से बड़ा मीटिंग हो तो भी टी शर्ट और पैंट में जाता हूँ मैं। तो इतना सा मेरा सामान लेके आई शिफ्टेड देयर इन द माउंटेन्स, एंड 2 साल आई स्पेंट डूइंग नथिंग विच वॉज नॉट गोना टेक मी टू एवरेस्ट। मतलब दिन में अगर कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ विच वोंट लीड यू नो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूवर्ड्स एवरेस्ट, तो वो मैं करता ही नहीं था। चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के लेवल पे हो या खाने के लेवल पे हो, या जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं हम इंटरनेट पे, जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने सबको अनफॉलो कर दिया था जो माउंटेनियर नहीं है। फेसबुक पे मैंने सबको अनफ्रेंड कर दिया था जो माउंटेनियर नहीं है, जिससे बहुत लोग मेरे दोस्त मुझसे गुस्सा हो गए। बट मैंने बोला ठीक है, तुम नहीं समझ पाओगे, बिकॉज द काइंड ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम लोग समझते नहीं है। Yeah, it shapes your thoughts in a way. So it's a very very dangerous space, social media. So अभी भी मैं खैर अभी आफ्टर एवरेस्ट मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया है, बट अन्नपूर्णा के लिए जब मैं वापस अभी अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई वुड बी शिफ्टिंग अगेन फॉर माई 6 months ट्रेनिंग, तो फिर से आई थिंक मुझे, या फिर मैं इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दूंगा। एंड मैं तो चाहूँ, मतलब if given a choice I would throw my phone out right now because it's so, but you know in a very, उसका दूसरा साइड भी है, you get to connect with so many people such as I got to connect with you and so many other people who are watching here right now. So yes, I tried to manage what I was consuming and Probably you know will make you do Isha, practices which are very, very powerful by this connection. yes Which definitely, you already and want to do. Yeah. I would love to यार। So around 6 to 7 hours का मेरा डेली रूटीन हुआ करता था। As people out here might know, ये जिन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, हेलो टू एवरीवन, मैं सबको अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा बिकॉज फ्लो मेरा है एक, वो टूट जाएगा तो फिर बट अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस और एनी पॉइंट्स विच यू वुड लाइक मी टू एलाबोरेट ऑन। तो मैं हूँ यहाँ पे, आज बहुत टाइम के बाद लाइव आया हूँ मैं, सो मौके का फायदा उठाते हैं आज, है ना। यस, सो 3:30 बजे आई यूज्ड टू वेक अप एवरी डे। यू नो मेरी आंखें खुल जाती थी विदाउट इवन अलार्म। आई यूज्ड टू जस्ट वेक अप लाइक दिस एट 3:30 इन द मॉर्निंग। देन आई गॉट टू नो कि वो टाइम पे कुछ ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, वो मैंने सुना है। अभी मुझे उसके बारे में उतना पता नहीं है, तो मैं आई वुडंट से कि मैं उसका लाभ उठाने के लिए उठ रहा था, बट नो, आई यूज्ड टू वेक अप एट 3:30 एवरी डे एंड दे यूज्ड टू स्टार्ट विद सम प्राणायाम, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अरे मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के यार, यहाँ पे कोई कह रहा है प्लीज स्टे कनेक्टेड टू अस, आई वोंट गो, डोंट वरी। So yes, I used to wake up at 3:30 every day and start my day with some pranayama, some breathing exercises and some meditation. उस टाइम पे तो I knew a few online guided meditation which I used to do. So it really helped me just to understand the power of stillness. एक बार आप अंदर से जब still हो जाते हो तो इतने से इतना बड़े से बड़ा भी तूफान आप कर सकते हो। You know, stillness में ही तांडव होता है, तो वैसी बात है। Stillness में ही तांडव होता है, very true. And you know the mind, because देखो स्कूल से हमें कहीं ना कहीं सिखाया जाता है कि we have to be physically fit and body पे काम करना है, खाना अच्छा खाना है, एक्टिव रहना है, एक्सरसाइजेस करने की, ये सब तो हमें सिखाते हैं स्कूल से। बट इस पे कैसे काम करना है ये तो हमें किसी ने कभी सिखाया नहीं, हमें नहीं बताया। And more people are mentally sick than physical, like that, it's a fact. And it's a very very sad thing because कहीं सिखाया नहीं है और कहीं इतना structured way में कहीं सिखा भी नहीं रहे। So I had realized कि my mind is a bigger muscle to work on than my body. So the morning used to be spent just working on my mind. Yeah. And yes, at around 5:30 or 6 in the morning, I used to leave my house to work on my stamina part. सुबह स्टेमिना पे काम करता था एंड शाम को आई यूज्ड टू वर्क ऑन माय स्ट्रेंथ पार्ट। ये दोनों फिजिकल फिटनेस का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। मॉर्निंग आई यूज्ड टू डू अ वेरी वेरी लॉन्ग हाइक, सम डेज विद अ वेरी हैवी बैकपैक ऑफ अराउंड 25-30 kg. ऑब्वियसली द वेट आई ग्रेजुअली इंक्रीज। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यू नो
इवेंचुअली ये चीज करेंगे तो सीधा 25-30 केजी से स्टार्ट मत करना, एक दिन में ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. स्टार्ट विद 5 केजी, 6 केजी, ग्रेजुअली इंक्रीज करना उसको. एंड around 3 to 4 hours of hiking used to help me build my stamina as well as my leg strength, because मेरा जो मेंटर है अर्जुन करके, तो उसने मुझे कहा था कि घोड़े जैसे पैर होने चाहिए अगर पहाड़ चढ़ने, तो वो मेरे माइंड में हमेशा बैठ गया था. एंड यस, इन द इवनिंग आई यूज्ड टू डू, सो वहां पे एक लोकल छोटा सा जिम था इन द विलेज वेयर आई यूज्ड टू स्टे. छोटा सा जिम था, बहुत बेसिक सेटअप था, बट अगर इक्विपमेंट्स आपको यूज करना आता है तो यू कैन डू एनीथिंग लिटरली. सो इन द इवनिंग आई यूज्ड टू डू सम क्रॉसफिट सेशंस, सम फंक्शनल ट्रेनिंग एंड सम वेट लिफ्टिंग. तो शाम का आई यूज्ड टू वर्क ऑन माय स्ट्रेंथ पार्ट, एंड घर पे आके अच्छे से अराउंड 45 मिनट्स टू 1 hour आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग पे अपने मसल्स को रिलैक्स करता था, बिकॉज रिकवरी of your muscles is much more important than training itself. So around 6 hours तक का मेरा डेली रूटीन था, मॉर्निंग एंड इवनिंग कंबाइंड. और इसके साथ साथ मैं एक और चीज करता था, which was to prepare myself for the conditions of high altitude, जहाँ पे आप खाना नहीं खा सकते, जहाँ पे आप पानी नहीं पी सकते, जहाँ पे आप सो नहीं सकते. तो ये 3 चीजों को सिमुलेट करने के लिए I used to do a very long hike, where I used to start at around 4 in the evening. I used to hike throughout the evening, throughout the night, until the next day morning, throughout the morning until the afternoon, around 18 to 20 hours. On one stretch? One stretch, without a single sip of water, without a single second of rest, and without a single bite of food. Because ऐसा ये conditions आप एवरेस्ट पे फेस करने वाले हो, so I wanted to push myself at least यहाँ पे, so mentally at least उतना दिलासा हो कि I can stretch my boundaries up if needed, True, of course. So I used to carry everything obviously if जरूरत पड़े, but body used to say कि पी ले, एक सिप पी ले, रुक जा, एक सेकंड तो रेस्ट ले ले, बट ना, तभी आपका दिमाग अगर थोड़ा सा और आपकी बॉडी से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है तो वो बोलेगा ना, मैं यहाँ से ठीक हूँ, I'll be able to persevere, I'll be able to take that one next step. Yeah, but like as you said, अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी पे काम करने के लिए बोला जाता है, but nobody teaches us how to control this, how to work on this, how to control your thoughts, your emotions, your mind. I mean, this boggles you, this drives you crazy. And as you very rightly said, like at times social media, whatever you are putting on your head, it is just driving you crazy in many ways. And at times you just have to, push it away, and then you just need to focus on something which you really want to do in your lives. And I totally agree with you on these parts. इसमें दो चीजें हैं. Either you, थोड़े समय के लिए फोकस हटा लो, या फिर रोज यूज करो लेकिन थोड़ा कॉन्शियसली यूज करो. दैट्स इट, व्हिच आई एम डूइंग नाउ. कि सोशल मीडिया मेरे लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट है कि मैं अभी छोड़ नहीं सकता इसको. हाँ. दूसरा ऑप्शन है कि इसको संभल के यूज करो. बी स्मार्ट अबाउट हु यू फॉलो, बी स्मार्ट अबाउट हाउ मच टाइम यू स्पेंड, एंड बी कॉन्शियस अबाउट जो भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उसमें फालतू का टाइम कितना है और कितना टाइम काम का है. बिकॉज जो स्क्रॉल कर रहे लगे ही उंगलियां स्ट्रांग हो जाती है. मतलब आप अनकॉन्शियसली करने लग जाते हो, आपको पता ही नहीं होता. इट्स अनकॉन्शियसली यू आर पिकिंग योर फोन एंड यू आर जस्ट डूइंग दिस एंड कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. अनलॉक कर लिया, व्हाट्सएप खोल के 10 लोगों के नाम देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे लोगों के मैसेजेस देख रहे हो, नोटिफिकेशंस देख रहे हो. पटांग चीज है यार, मतलब मुझे तो I know. I totally agree. Because right now people are not even connecting with the nature. People are allergic to sun. That gives me, what is this, man? The very source of energy. The reason you are alive is because of the sun, and you are saying you are allergic to sun. You are allergic to grass. Come on, you are the soil itself. One day you will turn into soil. When the time comes. And we are just spending time on the digital media all the time, and this even bothers me.
there's one thing which I want to say to all the audiences, like if you really want to have that control of your anxiety, stress, thought, emotions, control over your mind, inner engineering is one of the tools which is given by Sadhguru, and it's a Yeah. 21-minute practice. It is life-changing practice. I Absolutely. request all of you who are live right now that please enroll for the inner engineering online. I have been doing inner engineering since last 3 years. I have shared the videos of this on my channel, that how it has changed me, how it has transformed me. So if you really want to work on your mental health, inner engineering is the program for all of you. Yeah. Absolutely.